प्यारे विद्यार्थियों, जिस तरह कि आप जी ਨੂੰ पता ही है कि ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਟੈਂਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸ ਟੈਂਸ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਟੈਂਸ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲ ਕੀ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟੈਂਸਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟੈਂਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਸਟ ਟੈਂਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਿਊਚਰ ਟੈਂਸ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਟੈਂਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਖਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਟੈਂਸ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਚਾਣ ਰੂਲ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਟੈਂਸ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਟੈਂਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਟੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਉਹ ਟੈਂਸਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੈਂਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਲ ਯਾਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਡੈਫੀਨਿਟ ਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਚੇਂਜ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸ ਐਮ ਆਰ ਤੇ ਵਰਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ਇੰਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਡੈਫੀਨਿਟ ਟੈਂਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ 'ਚ ਚੇਂਜ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰੂਲ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਜ਼ ਹੈਵ ਨਾਲ ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਤੋਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੇਂਜ ਕਰੋ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਡੈਫੀਨਿਟ ਚੇਂਜ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਡੈਫੀਨਿਟ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰਨ ਰੂਪ 'ਚ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਡੈਫੀਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਰਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਾਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੂ ਡਸ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 16, 17, 18 ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 17, 18 ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੱਲੇ ਟੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਲੇ ਟੈਂਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਰੂਲ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਚੇਂਜ ਦਾ ਟੈਂਸ। ਚੇਂਜ ਦਾ ਟੈਂਸ ਇਹਨੂੰ ਟੈਂਸਾਂ 'ਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਗੋਜ਼ ਟੂ ਸਕੂਲ, ਹੀ ਗੋਜ਼ ਟੂ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੀਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊ ਲਿਖਤਾ ਹੈ। ਹੀ ਗੋਜ਼ ਟੂ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਜ਼ ਐਮ ਆਰ ਨਾਲ ਵਰਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਾਰਮ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਹੀ ਨਾਲ ਇਜ਼ ਲੱਗਦਾ। ਹੀ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸਕੂਲ, ਹੀ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸਕੂਲ, ਇਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੇਂਜ ਆ ਗਈ। ਦਾ ਚਾਈਲਡ ਕੁਕਸ ਦਾ ਫੂਡ, ਦਾ ਚਾਈਲਡ ਕੁਕਸ ਦਾ ਫੂਡ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪੀ ਪਾਇਆ, ਪੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਟੈਂਸ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਜ਼ ਅਤੇ ਹੈਵ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾ ਚਾਈਲਡ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਏਗਾ ਹੈਜ਼ ਕੁਕਡ ਦਾ ਫੂਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਚਿਲਡਰਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਹੈਵ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰੇ ਟੂ ਗੋਡ, ਵੀ ਪ੍ਰੇ ਟੂ ਗੋਡ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਪੀਸੀ, ਮੀਨਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊ ਟੈਂਸ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਵੀ ਆਰ praying the God, we are praying the God। ਅੱਗੇ I played hockey, I played hockey। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪੀਸੀ ਹੈ, ਪੀਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊ ਟੈਂਸ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊ ਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਜ਼ ਐਮ ਆਰ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਾਰਮ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੀ ਬਾਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋਗੇ ਉਨੀ ਹੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਲੱਗੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਲੈਸਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਚਾਹਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਟੈਂਸਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ।
क्योंकि मैं ये गल मन के चल रहा कि थोनों इंग्लिश के जोड़े साढ़े तिने टेंस ने उन्होंने तुम पूर्ण रूप में जानते हो तो पूर्ण रूप थोनों उन्होंने रूल याद ने। इस करके आप गल कर रहे हैं कि आ गया कि आई प्ले हॉकी, इतने आई एम प्लेइंग हॉकी, प्रेजेंट कंटिन्यू। फिर आ गया ही डज नॉट हेटेड द पुअर, ही डज नॉट हेट, इतने हेटेड लिखा पर कई बार की आंदा आ जाती है कि इतने हम हेट आएगा, हेटेड नहीं आना। वी डज नॉट हेट द पुअर, हूँ इतने की ने पीसी कंटिन्यू दे विच ही इज नॉट हेटिंग द पुअर, ही इज नॉट हेटिंग द पुअर। ही डज नॉट मेक ए नॉइस, ये भी मैं क्योंकि नैक्सट टेंस लैके जा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस दे विच। हुण की करोगे तुसीं इत्थे ध्यान नाल समझण वाली गल है, क्योंकि बार बार मैं कंटिन्यू की गल की है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट तो अगला सेंटेंस कंटिन्यू आता है। जो असी प्रेजेंट डेफिनेट को चंगी तरह इतने टेंस प्रेजेंट डेफिनेट से पाए गए हैं, क्योंकि तुहानूं पता है जिहड़ा डज है, डू डज है, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस दे विच लगदा है। सानूं इस गल दा हुण इत्थे की आ गया, ही डज नॉट मेक ए नॉइस, इहदा की बनूगा, इहदा आ गया ही इज नॉट मेकिंग ए नॉइस, ही इज नॉट मेकिंग ए नॉइस। हुण विच आ गया पीपी परफेक्ट। हुण यार की इत्थे ਇਹ ਸਾਈਨ ਆਫ ਟੈਰਗੂਏਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ डज ही टेल ए लाई, डज ही टेल ए लाई। प्रेजेंट परफेक्ट, हुण प्रेजेंट परफेक्ट ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ हैज़ ਦੀ, हैव ਦੀ ਅਤੇ वर्ब ਦੀ थर्ड फॉर्म। ਹੁਣ ਇੱਥੇ डज है, ਇੱਥੇ ਮੂਰੇ ही है, ही ਕਿਉਂ ਹੈ थर्ड पर्सन है। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ थर्ड पर्सन ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ थर्ड पर्सन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ हैज़ ਲਾਉਣਾ, ਇੱਥੇ ਕਹੂਗਾ हैज़ ही टोल्ड ए लाई, टेल टोल्ड ही, ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਕੀ आ गया हैज़ ही टोल्ड ए लाई, पिछले साइन ऑफ टैरगुएशन लग्या है। सो अगला कि डू दे स्पीक द ट्रुथ, डू दे स्पीक द ट्रुथ, डू लगे है, इतने स्पीक है, इतने आ गया प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। यार विद्यार्थियों दिमाग लगाओ कि दे लगे बहुवचन हैगा, इतने की आ गया, इतने आ गया आर दे स्पीकिंग द ट्रुथ, आर दे स्पीकिंग द ट्रुथ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਪੀਪੀ परफेक्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੀ प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट। मैं बहुत सारे ਜਿਹੜੇ सेंटेंसेस ने ਤੁਹਾਨੂੰ शुरुआत ਦੇ ਵਿੱਚ प्रेजेंट डेफिनेट ਦੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਤੋਂ परफेक्ट ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ही हैज़ प्लेड क्रिकेट। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ प्ले है ਇਹ ਬਲਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ਐਸ ਜਾਂ ਐਸ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, बट ਜਦੋਂ परफेक्ट च करना है उत्थे हैज़ अते हैव दा वर्ब दी थर्ड फॉर्म लगनी है। इत्थे क्या ही, इत्थे क्या हैज़ प्लेड क्रिकेट। फिर अगे शी गोज होम, क्योंकि शी ना वर्ब दी पहली फॉर्म ई एस थर्ड पर्सन आ गया, इत्थे परफेक्ट विच करना है शी हैज़ गॉन, गो वेंट गॉन, शी हैज़ गॉन होम, परफेक्ट आ गया। अगला आ गया परफेक्ट पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यू, यू डू नॉट ड्रिंक कोल्ड वाटर, ड्रिंक आ गया, ड्रिंकिंग आना है क्योंकि कंटिन्यू है, कि आना है यू आर नॉट ड्रिंकिंग कोल्ड वाटर, यू आर नॉट ड्रिंकिंग कोल्ड वाटर। हूँ अगे देखो दे डू नॉट गो टू स्कूल, इन्हों आप किस बदल लिए लोग परफेक्ट कर देंगे आप, की आ गया दे विच दे हैव नॉट गोन टू स्कूल, दे हैव गोन टू, क्योंकि जो असी आ चीज़ असी मेन हैल्पिंग वर्ब जो लगे है ये चैक करना तो असी उस सेंटेंस की कैटेगरी में लै जाना। अगला आ गया देखो दे आर गोइंग, दे आर गोइंग स्कूल, ये उन्होंने कंटिन्यू टेंस आ गया, ये वर्ब की पहली फॉर्म लगती इस एम्बर नाल, वर्ब की पहली फॉर्म नाल लगता है। हुण क्या अपन कहना प्रेजेंट डेफिनेट की आऊगा दे गो, दे गो। हूँ इतने आर इंग लगे, आर इंग कट जाएगा, दे गो लग जाएगा क्योंकि वर्ब की पहली फॉर्म लगनी है, प्रेजेंट डेफिनेट है। दूजा आ गया आई एम गोइंग, आई एम नॉट गोइंग, आई एम नॉट गोइंग, प्रेजेंट डेफिनेट की आ गया आई डू नॉट गो, आई डू नॉट गो। वी नेक्स्ट टू नेक्स्ट है वी आर नॉट रीडिंग, वी आर नॉट कंटिन्यू टेंस है, इनको अपने बदलना है, डेफिनेट बदल रहे हैं कि आ गया वी डू नॉट रीड, वी डू नॉट रीड,
नेक्स्ट देखो तुसी नेक्स्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ आर यू मेकिंग ए नॉइस आर यू मेकिंग ए नॉइस की कहा मैंने पीपी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आर यू मेकिंग ए नॉइस परफेक्ट टेंस ਵਿੱਚ ਕੀ लगता है यू आ गया हैव यू मेड ए नॉइस मेड मी हैव यू मेड ए नॉइस नेक्स्ट आ गया वी आर जंपिंग की आ गया उसे प्रेजेंट परफेक्ट लगेगा वी हैव जंप्ड क्योंकि मैं ये सारिया गल्लां तुहाडे तो ये आस रखदा हाँ कि तुसी पंजाबी दे अंदर सेंटेंसां दी अंक पहचान कर चुके हो तो तुहानूं ओहदे इंग्लिश दे रूल सारे सेंटेंसां दे याद ने सारे सेंटेंस जो क्योंकि असीं जो इंग्लिश टू इंग्लिश गल करनी है किसी नाल असीं बोलना है कल तो सिखाया गया जो इंग्लिश टू जो मूँह अगले का जवाब आना है असीं उसनूं किस टेंस च जवाब देना है इसलिए सानूं प्रैक्टिस करनी पेगी इंग्लिश टू इंग्लिश प्रैक्टिस करनी पेगी ये अपना जो चार्ट बनाया जो आप अज गल कर रहे हैं आप अज गल सारी प्रेजेंट की कर रहे हैं प्रेजेंट डेफिनेट टू प्रेजेंट कंटिन्यू प्रेजेंट परफेक्ट टू प्रेजेंट डेफिनेट और मैं बहुत सारे सेंटेंस मिक्स किए हैं तुसीं इहनूं बार बार सुनोगे तुहानूं पता लगेगा की है की नहीं हुण नैक्सट ले लो तुसीं शी इज़ नॉट लुकिंग एट मी शी इज़ नॉट लुकिंग एट मी प्रेजेंट डेफिनेट क्या होगा शी डज नॉट लुक एट मी शी डज नॉट लुक एट मी वी हैव टेकन टी प्रेजेंट डेफिनेट की बनावांगे वी टेक टी क्योंकि टेक सी नहीं लाना क्योंकि वी आ गया मुझे आई वी यू दे बहुवचन ना वर्ब की पहली फॉर्म बनानी है हूँ आ गया वी हैव नॉट रिटन द लैटर वी हैव नॉट रिटन द लैटर केड़ा टेंस है ये है प्रेजेंट परफेक्ट बनाना की है प्रेजेंट कंटिन्यू च की बन गया वी आर नॉट राइटिंग द लैटर जो थोनू बाद क्योंकि मैं इतने जोड़े नाम लिखे ने पी सी है पी आई है ये थोड़ा चेंज करने वास्ते किया जो मूला सेंटेंस की है तुम अपने आप देखना कि मूले सेंटेंस किहड़े ने प्रेजेंट दे मैं थोड़ा प्रेजेंट के सेंटेंस ही प्रेजेंट कंटिन्यू प्रेजेंट परफेक्ट दे विच या प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस प्रेजेंट डेफिनेट दे विच या प्रेजेंट कंटिन्यू दे विच चेंज करने वास्ते थोनू इत्थे लैक्चर दे विच समझाने की कोशिश की प्यारे विद्यार्थियों क्योंकि इंग्लिश नूं जो असीं अगे वधांगे तो सानू सेंटेंसां दी इंग्लिश टू इंग्लिश पहचान पता होनी चाहिए है क्योंकि जे मैं हुण थोनू ही गोज़ टू स्कूल थोनू पूछ लिया भी हाँ ही गोज़ टू स्कूल दस भी किहड़ा टेंस है ये हुण थोनू पता होना चाहिए पंजाबी इत्थे खत्म हो चुकी है थोड़ी मातृभाषा खत्म हो चुकी है तो इंग्लिश टू इंग्लिश की गल आ गई है ही गोज़ टू स्कूल थोनू पता होना चाहिए कि प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है दूजा आ गया कि जिवें बनाया गया मैं इत्थे बनाया सेंटेंस साडा होर हैगा कि वी हैव टेकन टी थोनू पता होना चाहिए किहड़ा सेंटेंस है वी हैव टेकन टी ये सेंटेंस किहड़ा है प्रेजेंट परफेक्ट क्योंकि इंग्लिश टू इंग्लिश थोनू जो फर्स्ट स्टैप असीं क्लीयर कर चुके हैं असीं सेंटेंसां की पहचान कर चुके हैं सानू इंग्लिश पंजाबी में सेंटेंसां का पता लग चुके है कि किहड़ा टेंस है और जो असीं इंग्लिश बनाना है सानू ये भी रूल पता लग चुके वे किहड़े सेंटेंसिस किहड़ा रूल लगना है हुण प्यारे विद्यार्थियों अगला स्टैप थोड़ा इंग्लिश टू इंग्लिश का है थोड़ा इंग्लिश टू इंग्लिश थोड़ा पता होना चाहिए कि जो मेरा बंदा मूहरे मेरे नाल गल कर रहा है वो किहड़े टेंस च गल कर रहा है वो मेरे प्रेजेंट टेंस गल कर रही है कि मेरे पास्ट टेंस गल क्योंकि तुसीं दो ऐसे लिखने ने ऐसे तो इंग्लिश नहीं जो थोनू ये सारा अभ्यास हो जाएगा कि की करना है इत्थे मैं किहड़ा वर्ब लाना है इत्थे मैं किहड़ी हैल्पिंग वर्ब लाना है जो तुसीं हैल्पिंग वर्ब ते वर्ब बारे या सबजैक्टां बारे थोनू पूर्ण रूप से ज्ञान हो गया तो तुसीं समझ लो कि तुसीं इंग्लिश सीख गए हो उसका थोड़ी प्रैक्टिस की लोड़ है बार बार तुमने गल कहन दी है कि मैं इंग्लिश के सेंटेंस लिखे ने इन्होंने इंग्लिश असीं चेंज किया है तो तुसीं कुछ सेंटेंसिस लिख के उन्होंने अपने आप इंग्लिश चेंज करने की कोशिश करो तो फिर देखो तुसीं किन्ने थोड़े रूल जिहड़े ने तुहानूं याद ने प्यारे विद्यार्थियों वीडियो को शुरू तो लैके अंत तक जरूर देखियो क्योंकि हर गल किते ना किते छुपी होंदी है एक लिंक दूजे नाल जुड़िया होंदा है इसनूं वध वध सबसक्राइब भी करो और इहनूं शेयर भी करो तुहानूं वीडियो पसंद आती है चंगी लगती है इहनूं लाइक करो।